Hello everyone, welcome to our channel. My name is Bhuvan Agarwal and I hope you all are doing great. So I have received many messages over LinkedIn and WhatsApp from the past few weeks, and many of you were requesting me to start some series on investing and to share my personal experience and knowledge with you guys. So cheer up, I have come up with such a series where I will be discussing with you guys each and every single thing related to investing and what all things you must know before you get into investments. Okay, so before moving on, I would like to request you to kindly subscribe to our channel and press the bell icon so that you don't miss any notifications for such important content. And please like this video if you really get some knowledge and motivation out of it after watching it entirely. Okay, so you see, you all might know by now that there were two motives behind this channel. The first motive was to share my personal experience and knowledge regarding computer science, as I am a computer science engineer. So my motive was to better prepare you for your interviews, to share my knowledge regarding computer science engineering and its subjects. And the second motive which I had is to spread financial literacy, which is lacking a lot in our society. So this is the series which focuses more on the financial literacy part. Okay, because it is very important for each and every one of us to be financially literate, right? And the second request which I received from you all were to make the videos in Hindi. सो ठीक है, मैं इस पूरे सीरीज में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करूंगा एंड मैं ये पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको इन्वेस्टिंग का फर्स्ट लेसन जो है आज का, वो मैं आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ समझा सकूं, सो दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंटायरली your concepts get clear, like why we should invest and why we should know about investing. Okay, so the first lesson of investing which I want to start today is the Pareto principle, that is 80-20 rule. Okay, now you all might think that यार ये तो हम लोग गूगल से भी पढ़ सकते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल तो कोई भी गूगल से पढ़ सकता है, right? Yes, you can read it from Google and even you can learn BTech, entire BTech course from Google. Then why you are joining colleges, right? For the sake of degree itself, correct? So if it is available on Google and everybody can read it for free, then why we Indians are still lacking in financial literacy? Do you have any answer to that? Right? If you search on Google, अगर आप search करोगे Google में that how many Indians generally invest in stock markets or mutual funds or cryptocurrencies or any other investments instruments, then you will see that hardly ये percentage 5 to 10% भी cross नहीं, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ. Okay, so 5 to 10% is the maximum, right? इतने परसेंटेज लोग ही इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, रेस्ट ऑल आर नॉट इन्वेस्टिंग ड्यू टू फियर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. So what is this principle, what is this Pareto principle and what is this rule of 80-20? So अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो then you will generally find this definition of Pareto principle, that is 80% of the results generally come from 20% of the overall efforts that you put in. Okay, so ये होता है Pareto principle. What it says is अगर आप कोई भी काम में efforts input डाल रहे हो, then you will generally see that 80% of the results that you are getting out of that work is generally due to your 20% of the efforts that you have inputted into it, right? So this is why Pareto principle is so valid. It is very valid in our day-to-day life activities. So कुछ examples मैंने यहाँ दिए हुए हैं. So let us see to some of the examples like how Pareto principle is applicable in our day-to-day activities. Okay, so it will be a very interesting example. So let us see to that. So the other examples of Pareto principle that are applicable in our day-to-day life means Pareto principle हमारे life में और कहाँ applicable है, that is 80% of your profits generally come from 20% of your investments. Means अगर आप कभी भी investment start करोगे then you will find this line to be very valid. Okay, next, 80% of the sales generally come from 20% of the clients. Like for example, suppose आप और हम सभी Amazon, Flipkart या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, करेक्ट?
सो क्या आप खाली एक प्रोडक्ट परचेस करके उसके बाद उसमें और कोई परचेसेस नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं होगा, राइट? यू डेफिनेटली बाय अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स at different time frames from Amazon or Flipkart or any other online platforms. So Amazon के respective में, if you will talk in the perspective of Amazon, what their database is saying that 20% of the clients are actually giving them 80% of the sales. Means the total sales, out of that 80% of the sales are generally coming from 20% of the clients. So it is just an approximate percentage. Okay, you don't think only 80 होगा ये तो 20 होगा, ऐसा नहीं है. So this is how Pareto principle is applicable in this sector also. Next, 80% of your time you use 20% of the apps on your phone. ये तो आप सभी मानते हो कि हमारे सबके फोन में एक ना एक ऐप ऐसा होगा ही जो हमने मन से ओपन नहीं किया. डेफिनेटली होता ही है, right? So generally what we do is every day 80% of our time we generally see or use only 20% of the apps, correct? And I'm giving you one more example, that is 80% of your time you generally use 20% of the features on your phone, because आप हर दिन सारे features तो use नहीं करोगे line by line, correct? So you generally use those features that is more useful for you in your day-to-day activities. So these are some of the examples that are very valid of Pareto principle in our day-to-day activities. There are many more examples, but I found that these examples are more suitable in everyone's life. Okay, so let us see the main rule that how Pareto principle is applicable in investments, right? हम यहाँ investments क्यों important है ये समझने आए हैं. The first lesson deals with to understand why investments are necessary. Okay, so ये समझना बहुत important है कि Pareto principle, the rule of 80-20 हमारे लिए किस तरह से helpful होगा investments के perspective में. Okay, so let us get into that. समझ रहे हो? So the rule of 80-20 that is applicable in investments is, if you see people from different sectors of economy, means अगर आप कोई भी sector देखोगे like IT sector या automobile sector या pharmaceutical sector or any other sector, and there are normally many people working in that sector, correct? So if you classify those people based on their economic status, right, means their salary, their living standard, if you classify them based on their economic status, आपको ये पता चलेगा कि 80% of the people belongs to middle class, correct? 80% of them means majority of the persons belongs to middle class or lower middle class, but only 20% of them are extremely rich. And this is very valid, right? अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ये आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि majority of the people around you are belonging to middle class only. Even they are working in big organization like Amazon, Google, Microsoft, but still their living standard is like a middle class person only, because they are having lots of loans, they are having home loans, they are having this and that, lots of liabilities, right? So ये valid है. Pareto principle is applicable in this way in investments in our economy, correct? So I hope you got this thing. Now our main question must be that ठीक है, अगर 80% of the people are belonging to middle class, then what is the secret behind this 20% people that makes them so rich, correct? ये आपका क्वेश्चन होगा, तो मैंने भी ये क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किया है, that is what is the secret behind this 20% people that makes them so rich? क्योंकि हमने अभी समझा कि कोई भी सेक्टर अगर हम देखें उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, but I need to know the secret behind this 20% people that makes them so rich, because they are also working in that very sector. मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी वही काम कर रहे हैं, right? जो मैं जानता हूँ वो भी वही जानते हैं, but still वो मुझसे एक्स्ट्रा ऐसा क्या जानते हैं जिसके वजह से they are having a good luxurious standard of living, करेक्ट? सो वो सीक्रेट हमें पता होना चाहिए. तो ये सीक्रेट मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ. सो आई एम शेयरिंग अ स्टोरी विथ यू गाइज so that you can easily understand what is the secret behind this 20% people. So ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है guys, so stay tuned. Oh my God! Wow! So the story starts like this. एक पर्सन है, वो एक दिन इस समुद्र के किनारे पे खड़ा था, ठीक है? समुद्र, यू नो राइट, ओशन. सो समुद्र के किनारे पे ये खड़ा था और ये इसका खड़े खड़े ये सोच रहा था कि यार अगर ऐसा कुछ हो कि मैं ये ओशन को एक्सप्लोर कर सकूं, मैं ये इसमें जा सकूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये समुद्र में क्या क्या है, आगे क्या क्या कौन कौन से आइलैंड्स हैं. सो ही हैड अ ड्रीम ऑफ एक्सप्लोरिंग द ओशन बेसिकली. सो ही थॉट
अगर मुझे ओशन में जाना है सो डेफिनेटली आई नीड अ बोट फॉर दैट और अ शिप, राइट? सो ही थॉट यस, अगर मेरे पास बोट होगा तभी मैं ये ओशन को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, नए नए आइलैंड्स को देख सकूंगा, राइट? सो उसका अभी टारगेट हो गया कि यार मुझे तो बोट चाहिए होगा, करेक्ट? बट as we already seen that 80% of the people belongs to middle class. So ये पर्सन भी जो था जिसने बड़े ड्रीम देखे, जो हम सब देखते हैं अपने लाइफ में, so इसने भी ऐसा ड्रीम देखा बट ही नीड अ बोट फॉर दैट. सो इसका टारगेट बन गया कि यार मुझे तो कहीं ना कहीं से बोट चाहिए ही होगा, तभी मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊंगा. सो इसका पूरा टारगेट कहाँ चल गया? आई नीड अ बोट. बट देर आर टू वेज फॉर हिम टू गेट दिस बोट. या तो वो डायरेक्टली मार्केट से जाके ये बोट को परचेस कर ले या फिर इसे खुद बना ले, राइट? बट एज वी ऑल नो दैट ही इज फ्रॉम मिडिल क्लास, सो डेफिनेटली ही कैनॉट बाय. वो तो मार्केट से जाके खरीद नहीं सकता बिकॉज उसका बजट इसके अंदर नहीं आता है, राइट? सो इसने सोचा कि यार मुझे तो अब बोट बनाना पड़ेगा. सो इसने क्या किया, इसने फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया और ये बोट बनाने में लग गया. इसने दिन रात एक करके बोट बनाई. मतलब वो सुबह अपना जॉब करता था, शाम को आके अपना पूरा टाइम वो बोट बनाने में लगा रहा. उसने बहुत मेहनत की, मतलब उसने कितने मंथ्स लगा दिए, कितने कितने मंथ्स लगा दिए, और पूरे हर टाइम वो खाली बोट बनाने के बारे में सोचता था, अपने ड्रीम के बारे में सोचता था, और बहुत मेहनत से वो बोट बनाता था हर दिन. बहुत सारे मिस्टेक्स भी उसने की बिकॉज ये उसका प्रोफेशन नहीं है. जस्ट टू फुलफिल हिज ड्रीम, जस्ट टू अकॉम्प्लिश हिज ड्रीम, ही जस्ट gave whatever he had to build this boat. उसको ये बोट किसी भी कीमत पे बनानी थी, right? So that he can explore, he can live his dream, correct? So what happened that after building his boat, मतलब जब उसने बोट बना लिया तब उसने एक बहुत स्ट्रेंज थिंग किया. पता है उसने क्या किया? उसने उस बोट को एक रस्सी पे बांध के किनारे पे टाई कर दिया. मतलब सी शोर होता है ना, किनारे पे उसने वो बोट को बांध दिया. अब बहुत सारे पर्सन्स ने जो देखते थे उसको, यार ये तो दिन रात बोट बनाता था, अब जब बन गया है, इतना सुंदर बनाया उसने, मतलब मेहनत के बाद उसने इतनी सुंदर बोट बनाई कि वो पर्सन उस बोट को देख के इतना इम्प्रेस हो गया कि यार मुझे ये बोट को खोना नहीं है किसी भी कीमत में. ये सबके लाइफ में होता है. आप खुद सोचिए, अगर आप कोई भी काम बहुत मेहनत से अचीव करते हो तो यू विल डेफिनेटली विश दैट कि ये काम आपका कभी वेस्ट ना हो, ये जो मेहनत आपने की है इसका फल आपको मिले, करेक्ट? सो ये भी इसने बहुत दिन रात एक करके एक बोर्ड बनाया. अपने लाइफ में पहली बार इसने खुद से एक बोर्ड बनाया, बट वो इतना सुंदर बना, इतना अच्छा बना कि वो इसे खोना नहीं चाहता था. तो इसने क्या किया, इसे किनारे पे टाई करके रख दिया. तो बहुत सारे आने जाने वाले लोग इससे पूछते थे, यार तुम इसे क्यों बांध के रखे हुए हो? अगर तुमने बोर्ड बनाई है, इतने मेहनत से बनाई है, जो पर्पस के लिए बनाया था उसे तो अकॉम्प्लिश करो. तुम्हारा पर्पस क्या था? कि तुम्हें ओशन को एक्सप्लोर करना है. तो अब जब बोट बन गया है तो जाओ और ओशन को एक्सप्लोर करो, अपना ड्रीम को, यू जस्ट लीव योर ड्रीम. सो उसने आंसर किया कि यस, मैं अपना सपना जीना तो चाहता हूँ, अभी भी चाहता हूँ, बट मैं इस बोट को खोना भी नहीं चाहता. बिकॉज अगर मैं इसे समुद्र में ले गया तो अगर बिग वेव्स के वजह से मेरा बोट अगर क्रैश हो गया, डूब गया, तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी. या फिर कोई बड़ा सी क्रिएचर मेरे सामने आ गया लाइक शार्क्स और वेल, तो मेरा बोट तो वहीं डूब जाएगा और मैं भी मर सकता हूँ, करेक्ट? सिमिलरली अगर वहां पर कोई मुझे बचाने नहीं आया डूबने के समय, तो मेरा बोट भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा, करेक्ट? सो वो वहां पर और बीच समुद्र में तो उसे कोई हेल्प करने को भी नहीं आने वाला है. तो ये सब फियर उसके माइंड में आ गया जो उससे पहले नहीं था. जब उसके ड्रीम उसने जब देखा और उसने जब मेहनत करके, बहुत मेहनत से जब एक बोट बना ली, तब उस बोट को एक्चुअल में टेस्ट करने का जब बारी आया तब उसको फियर ने घेर लिया, राइट? सो ये सबके लाइफ में होता है. सो जब उसके पास बोट था तब वो अभी उसको रिस्क लेना का मन नहीं कर रहा है. मतलब ही डोंट वांट टू टेक रिस्क विद दैट बोट बेसिकली, बिकॉज उसने वो चीज़ बहुत मेहनत से बनाई है. उसका पास जितने रुपए था उसने सब चीज़ लगा दिया एक बोट बनाने में, और वो जब इतना सुंदर बन गया है, बट अब उसे डर लग रहा है कि अगर मैं इसे ले गया और ये डूब गया तो मेरा सारा मेहनत भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा, करेक्ट? सो व्हाट मेनी पीपल सेड हिम दैट अगर आपने इतने अच्छे से मेहनत से बोट बनाई है, इतने सुंदर बोट बनाई है, देन अगर आप इसे किनारे पे बांध करके रख रहे हो तो क्या आपको कुछ रिटर्न आ रहा है? क्योंकि वो किनारे पे अगर ऐसे ही बंधा रहा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मतलब 10 साल 20 साल बाद वो ओशन के उस सॉल्टी वाटर के कारण वो बोट कभी ना कभी तो डैमेज हो ही जाएगा,
करेक्ट. सो वो खड़े खड़े ही वो बोट वहीं पर ही खत्म हो जाएगा अगर आप उसे कभी भी लेके नहीं जाओगे तो जस्ट ट्राई एंड टेक दैट बोट अलॉन्ग विथ यू इन द ओशन. राइट. सबने उसे यही सजेस्ट किया कि अगर आपने बोट बनाई है और जिस पर्पस के लिए आपने इस बोट को बनाया था, तो अगर आप वो अभी नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे. और आज आप जो इतना प्यार कर रहे हो अपने बोट को, वो भी एक दिन एक्सपायर तो हो गई, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज एन एक्सपायरी डेट. आज नहीं तो कल वो बोट भी खत्म हो गई जरूर. राइट. सो उसने ये जब बात सुना तो उसकी आंखें खुल गई और उसने अपने बोट को लेके गया ओशन में. और व्हाट एंड यू नो उसने अपने गोल को भी अचीव किया, उसने ओशन भी पूरे एक्सप्लोर किया. राइट. सो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस स्टोरी. सो आप कभी ये सोचो कि क्या आप भी अपने मनी के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप भी बहुत मेहनत से काम करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप कोई भी काम करते हो अपने बिजनेस में, आप बहुत मेहनत से जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जब सैलरी क्रेडिट होता है, तो ये जो सैलरी है आप अभी इसे इन्वेस्ट करने में डर रहे हो. राइट. यू नो दैट आई नीड बिग, यू हैव बिग ड्रीम्स. राइट. बट आप फिर जब पैसा आपके हाथ में एक्चुअली आता है, जैसे इस पर्सन के पास जब बोट एक्चुअली बन के रेडी हुआ, तब ये डर गया कि अगर मैं इसे ओशन में लेके जाऊंगा तो ये डेफिनेटली डूब गया तो मेरा पूरा मेहनत पानी में मिल जाएगा. राइट. सो जस्ट लाइक दैट थिंग दैट अगर आपके पास जब पैसा आ रहा है तो कहीं आप भी अपने बोट को किनारे पे तो बांध के नहीं रख रहे हो, बैंक अकाउंट में तो बस सेव करके नहीं रख रहे हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट वो बैंक अकाउंट में रह के भी उसका वैल्यू कम हो जाता है. Right. Now you will say, no Bhuvan, I am getting interest on my money from banks. Right. Yes, आपको interest मिल रहा है. यही इसी तरह तो banks आपको fool कर रहे हैं, because bank are the richest people in this world. Banks ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं. Right. And what they do is they will give you 4 to 5% of the interest rate. And what you generally don't know that there is a concept called inflation, जिससे आपका मनी का परचेजिंग पावर वैल्यू कम हो जाता है. ठीक है. मतलब आज से अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो आप 100 रुपए में अगर आप 10 थम्सअप्स खरीद सकते थे, तो आज खाली एक या दो ही थम्सअप आएगा. राइट. सो दैट इज द थिंग, मीन्स द परचेजिंग पावर, द वैल्यू ऑफ योर मनी विल बी डिटोरिएटिंग. the value of your money will be deteriorating day by day, and it is very true. So अगर आप इसे बैंक अकाउंट में रखो, वो एक ना एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा. yes, you will see you are having 10 lakh rupees in a bank, but that 10 lakh rupees has no value in this at that time, at that point of time, right, in future basically. So I hope you got this story. So this was the motive behind this story, that you should never ever, मीन्स अगर आप मेहनत से पैसे कमा रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड टेक रिस्क एंड ट्राई टू इन्वेस्ट सो दैट यू कैन बीट द इन्फ्लेशन रेट. ओके. बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे. So that is the thing. This is the secret that 80%, 20% people actually follows. That is, the secret is that those 20% people are aware of the fact that not taking any risk is the biggest risk in life. अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते हो, तभी आप अपने लाइफ की सबसे बड़े रिस्क ले रहे हो. लाइक वो पर्सन, उसने इतने मेहनत से बोट बनाई और उसे किनारे पे तो बांध दिया क्योंकि उसको रिस्क लेने में डर लग रहा था. बट ये चक्कर में उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क ली, बिकॉज उसका वो बोट किनारे पे खड़े खड़े ही खत्म हो जाता. उसकी मेहनत एक ना एक दिन तो खत्म होती ही, और वो ओशन को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता. सो दैट इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ. सो यू शुड नेवर टेक दैट बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ, बिकॉज अगर आप रिस्क लेने से रिटर्न्स भी मिलेगा आपको. रिस्क अगर आप लोगे तो रिटर्न्स भी आते हैं. हाँ, उसके पीछे आपको अच्छा नॉलेज पहले गेन करना पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर, यू नीड टू लर्न फर्स्ट, देन ओनली यू नीड टू अर्न. ओके, पहले लर्न करो, डेफिनेटली यू विल गेट अर्निंग्स. So this was the secret behind this 20% people, that if you are not taking any risk in life, अगर आप जो सैलरी आपके पास आ रही है, जो पैसा आप कमा रहे हो, अगर आप उसमें से थोड़ा अमाउंट में कैलकुलेटेड रिस्क अगर नहीं लेते हो, तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग अ बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ एंड यू विल नॉट अचीव दोज बिग ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन अ बंगलो एंड ऑल. सो वो नहीं होगा कभी भी पूरा, बिकॉज अगर आप कभी भी रिस्क नहीं लेते हो अपने लाइफ में, तभी आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हो. Correct. So I hope you got this concept behind why we need to invest, what is the importance of investment, and what is the secret that those 20% people that makes them so rich.
ओके सो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो, सच में कुछ नॉलेज आपको मिला हो, सो डेफिनेटली लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी.